Hi guys, welcome back to my YouTube channel. मैं हूँ देवयानी and thank you so much for 4,000 subscribers. It's so exciting. Help me reach 5,000 now. So please subscribe to my YouTube channel. But today I'm posting after so long because मेरे पास घर नहीं था. तो आपको पता होगा in the past few videos I was staying in an Airbnb and finally after looking for a place for 2 long months I finally found this place. So this is my new घर, which is really good because natural sunlight अच्छा आ रहा and everything is nice. So in this video, I'm going to talk about the housing scenario in London, okay? Because अभी London में especially or in the UK, job मिलना is easier than to find a house. Like it is so bad because especially because बहुत students आ रहे हैं. Like last year 2021, a lot of students came. But usually कैसे होता है कि लोगों को job नहीं मिलती, फिर वो वापस घर चले जाते हैं. Because of PSW work visa, everybody is still here. Like nobody is going. So घर इतने limited है and like लोग आते जा रहे तो रहेंगे क्या? So in this video, I'm going to cover everything you need to know about how to find a house if you're a student, if you have graduated from a student and are currently unemployed, and if you have a job. So ये सब चीज़ों में I'm going to talk about. So I have my iPad right here. So first of all, let me tell you, like literally, if you're a student, please believe me, stay at a student accommodation. Like आपका इतना time बचेगा, अपना इतना पैसा बचेगा. It is so convenient. Like without a student accommodation, I don't know, last year तो मेरे को कुछ like I was living in a bubble. मेरे को पता ही नहीं था कि इतने सब चीज़ें जाती है. So again, if you want to stay at a student accommodation, I really recommend Amber Student, which is Southeast Asia's largest student accommodation provider. So I've added a link in the description box below. You can click on that. तो वहाँ पे तो आपको बहुत options मिलेंगे. Just click on that. Somebody from Amber Student will call you, ask you for your details, and you just easily just pay them and book. Literally, it's as easy as that. And like इतने benefits थे ना last year. Like as a student, like आपको किसी का कुछ स्ट्रेस नहीं लेता. यू डोंट हैव टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई बिल, यू डोंट हैव टू लुक एट द गारंटर, काउंसिल टैक्स. लाइक कुछ ड्रामा नहीं होता. इट्स सो ईजी एज इट इज. So this is the student accommodation part. So in case you do not want to stay at a student accommodation and you want to get your own flat, so this video is that. So आगे में I'm going to talk about how you can get your own flat, and this is more London perspective because London में flat मिलना is more difficult than anywhere else in the UK. So it is what it is. Like for example, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ में पढ़ रहे हो और बाद में आपको ग्रेजुएशन के बाद लंदन में जॉब ढूंढना, तो दिस इज द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो लाइक लंदन में आने के लिए. ओके, सो लेट मी टेल यू, इफ यू आर अ स्टूडेंट और समबडी हु हैज ग्रेजुएटेड एंड डज नॉट हैव अ जॉब, ठीक है, यू वुड नीड अ यूके गारंटर. तो गारंटर कौन होता है? समबडी हु इज अ यूके सिटीजन हु कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ मैं इस पर्सन को जानता हूँ, I have that much income. Like if this person fails to pay the rent, I take complete responsibility of this person. ठीक है? So you need a guarantor. So if you don't have a guarantor, you need to be prepared to pay 6 months rent up front. ठीक है? So this is like the basic background you need to know. ठीक है? तो घर पे कैसे होता है ना, in UK, in London, there are 2 types of houses. First is a house for families and the second is the house for sharers. तो sharers के जो houses होते हैं ना, they need a special license to keep bachelors or people, you know. तो इसको बोलते हैं HMO लाइसेंस. सो व्हेन यू आर लुकिंग ऑनलाइन, आपको सब घर नहीं मिलेंगे. तो ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक द मेजर लाइक 60% घर फैमिली के लिए होते हैं और ओनली 40% आर फॉर शेयरर्स. ठीक है? सो दैट यू नीड टू कंसिडर. लिटरली मेरा स्टूडेंट अकोमोडेशन का टेनेंसी खत्म हुआ इन अगस्त. अब कौन सा मंथ चला? इट्स अक्टूबर नाउ लिटरली. तो इतने टाइम से वी वर ट्राइंग टू फाइंड अ हाउस, और स्पेशली बिकॉज हम 4 लड़कियां हैं, लाइक 4 गर्ल्स स्टेइंग टुगेदर, इट वाज इवन मोर हार्ड बिकॉज 4 बेडरूम्स मिलना वाज टफ एंड थिंग्स लाइक दैट. आपको ये कंसिडर करना है. सो इट इज़ लाइक इफ यू गेट अ जॉब इज कंपैरेटिवली ईजियर, बट अभी आपकी कॉम्पिटिशन इज रियली हाई. सो लाइक यू नीड टू कंसिडर दैट. सो घर कैसे ढूंढते हैं? सो आई एम गोना रिकमेंड यू 4 साइट्स जो बहुत अच्छे हैं. फर्स्ट इज Zoopla, Rightmove, स्पेयर रूम एंड ऑन द मार्केट. ठीक है? सो दीज आर बेसिकली वेबसाइट जहाँ पे लिस्टिंग होती है ऑफ अकोमोडेशन. सो कुछ तो नया आ गया तो वहाँ पे पहले आता है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज आई एम गोना शो यू अ ट्यूटोरियल कि आप कैसे कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ इट इज. फॉर एग्जाम्पल, गो टू zoopla.com. सो Zoopla अगेन आपको दिख रहा है कि दिस इज द वेबसाइट. सो गो टू रेंट बिकॉज आपको रेंट करना है. सो यहाँ पे आप एरिया में डालो लंडन, then beds. So like for example, you have 2 friends who are looking for a bed together, or maybe 3. So imagine like आप 2 लोग हैं. I'm going to put this and the maximum price. So आप महीने में कितना maximum देना प्रेफर करते हो? So 2000 is like आपको 1 लाख ईच पड़ेगा. तो हम थोड़ा कम रखते हैं. Let's keep the budget as 1500 because this is the basic rent. उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, उसके ऊपर वाटर बिल आएगा, उसके ऊपर वाईफाई बिल आएगा. So obviously आपका ऑलमोस्ट 2 लाख तक पहुँच ही जाएगा. So then show ऑल ये करके
यहाँ पे आएगा. सो यहाँ पे आपको बहुत ऑप्शंस दिखेंगे, पर इस तरह से ना द ऐप डज नॉट लाइक द वेबसाइट डज नॉट लोड वेरी फास्ट. सो गो टू फिल्टर्स एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कौन सा, एडिट टू साइट. ओके, एडिट टू साइट एंड जस्ट से इन द पास्ट 24 आवर्स, मतलब जो इमीडिएटली ऐड किया. तो यू कैन सी दिस वन फॉर एग्जाम्पल. तो आपको ये एरिया दिखा है SW15, फिर यू कैन सी फोटोज़. ये अच्छा ये बिल्डिंग में है, ऐसा 2 bedroom है, 1450 पर मंथ. सो ईच लाइक 335 pounds पर वीक विच वुड बी डिवाइडेड इंटू 2. तो अगर आप इस पर देखोगे, लेट्स जस्ट गो डाउन, तो इसमें 1 बाथ है. सो 2 beds 1 bath. देन यहाँ पे फर्निश्ड है 2 bedrooms, रिचमंड पार्क 9th floor, लिविंग रूम किचन. तो यहाँ पे उन्होंने कुछ फैमिली या स्टूडेंट के बारे में नहीं लिखा. सो यू कैन डेफिनेटली इंक्वायर. सो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपने रिसर्च किया, कोई घर पसंद आया, तो ऑल यू हैव टू डू इज कॉल देम एंड जस्ट से हेलो, दिस इज देवयानी, आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी SW15 Allenford हाउस. तो उनके बैकअप पे उतना पूरा, मतलब ऑब्वियसली दे हैव लिस्टेड इट, सो दे नो विच हाउस दे टॉकिंग अबाउट. तो बोलते ओके फाइन. सो देन यू जस्ट से दैट ओके आई वांट टू अरेंज अ व्यूइंग एट दिस हाउस एंड जस्ट गिव मी अ डेट. देन वो आपके डिटेल्स मांगते हैं, बिकॉज स्पेशली फॉर इंडियंस वो आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका एजुकेशन कहाँ पे है, आपके रूममेट्स के नाम क्या है, आप पढ़ रहे हो, शेयरर है. तो मेक श्योर यू से दैट यू आर अ शेयरर. लाइक सम फ्लैट्स पे ऐसे लिखा नहीं होता स्पेसिफिकली कि फैमिलीज के लिए, बट व्हेन यू गो दैट यू माइट बी डिसअपॉइंटेड कि वो शिट फैमिली के लिए था, यू वोंट गेट द व्यूइंग एंड थिंग्स लाइक दैट. सो मेक श्योर आप शेयरर्स बोलो. सो दिस इज व्हेन यू आर 2 or 3 people जो एक साथ दिख रहे हैं. But there is another website if you are searching for something alone, ठीक है. So it is called Spare Room. तो Spare Room कैसे होता है ना, I'm going to show you that anyways. London and search. So यहाँ पे देखो. So basically अलग अलग लोगों ने वेबसाइट पे डाला कि okay we are 4 girls, we are looking for a 5th girl, और we are 2 people looking for a 3rd flatmate. तो यहाँ पे उनका बिल कैसे है, what is included, वो सब लिखा है. So through Spare Room it is comparatively easier to find a flat if you are alone. बिकॉज लाइक एक ही ओपनिंग है, आप कहाँ पे भी रह सकते हो, बट दैट इज व्हेन यू स्टे विद कंप्लीट स्ट्रेंजर्स. सो एक थोड़ा सा डाउन साइड है, लाइक आई डोंट वांट टू स्केयर यू गाइस, बट देयर हैव बीन एक्सपीरियंसेस जहाँ मेरे 2 दोस्त, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज अप विद लाइक गाइस इन स्पेयर रूम्स एंड थिंग्स लाइक दैट, बट उनके फ्लैट में कोई तो लड़का था, आई डोंट नो, ही वाज काइंड ऑफ क्रेजी, जो किचन के नाइफ से सबको थ्रेटन करता था, यू नो. एंड देन देयर वाज अनदर गाय हू यूज्ड टू सेल ड्रग्स ऐसे. सो दोनों इस पे लाइक पुलिस का रेड हुआ था एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड यू नो यू डोंट वांट टू बी स्टक इन सिचुएशंस यू डोंट नो. सो बिफोर यू लाइक कमिट टू एनी स्पेयर रूम वाला हाउस ऑल्सो मेक श्योर यू डू अ प्रॉपर बैकग्राउंड चेक, यू नो, कि आप देखो रूममेट से मिलो, उनको देखो, जानो, थोड़ा फेसबुक स्टॉक करो, आई डोंट नो व्हाट, बट मेक श्योर यू आर सेफ. सो फॉर मी इट वॉज लाइक मेरे को मेरे रूममेट्स को छोड़ना ही नहीं था, बिकॉज आई नो देम सिंस अ ईयर, आई हैव बीन लिविंग विद देम सिंस लाइक लास्ट ईयर. So it was more convenient for me and more safer in every aspect to find a flat together. So because we were 4 people, it was even more hard. पर कैसे कि तो भी it was comparatively easier I would say, because 4 लोग बहुत कम ढूंढते हैं, if you get it. Like 2 दोस्त बहुत होते हैं, 3 लोगों का भी ग्रुप बहुत होता है कि 3 लोग ढूंढ रहे हैं. So the competition for a 3 bedroom is even more higher. So like after you finish your student accommodation का tenancy, like I would say let's like in your last month only start viewing and just put in an offer. नहीं तो like हमारा ऐसे ही हुआ, like we lost our house, we had to move to an Airbnb. वो Airbnb में भी 1 महीना रहे हम, उसमें भी पहले 15-20 दिन कुछ नहीं मिल रहा था. Then by the end like literally हम घर घूम के finally ये accommodation मिला. Like this place also does not have a hall or anything, it's just like 4 rooms. So it's like a big compromise in that sense. Like maybe we could have found something better at a better rate, but itna like it was like being homeless or getting in this place, and it has been so stressful guys, I can't even explain. So just make sure you बहुत पहले से आप viewing start करते हो, right? So you know there have been times also कि like it is even more scary because बहुत scams होते हैं इसमें. So sometimes there are listings and जब आप deposit pay करते हो, it's a no show कि आप contract ही sign नहीं करते, deposit नहीं pay करते, and सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करते, डिपॉजिट पे कर देते, तो वो घर चला जाता है एंड थिंग्स लाइक दैट. सो यू डू नॉट लाइक, यू नीड टू बी वेरी सेफ. लाइक अगर देयर हैव बीन ऑल्सो इंस्टेंसेस, लाइक अगेन आई डोंट वांट टू स्केयर यू गाइस, इट्स जस्ट लाइक ऐसी चीज़ें होते हैं. सो आई नो ऑब्वियसली आई वांट यू गाइस टू नो अबाउट दिस. तो ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं वेर अ सिंगल पर्सन इज गोइंग टू व्यू अ हाउस एंड देन द एजेंट इज बिहेविंग इनअप्रोप्रिएटली. सो मेक श्योर यू टेक 1 more person एंड थिंग्स लाइक दैट. अभी मैं सच बताऊँ आपको, हम घर सुबह देखने गए. सो बेसिकली ओके हम जूपला पे गए, हमने कॉल किया कि हाँ वी वांट टू अरेंज अ व्यूइंग.
लिटरली व्यूइंग पे 50 से ज़्यादा लोग सेम फ्लैट देखने आ रहे हैं। लाइक ओके, हाउ डू वी स्टैंड आउट इन दिस एप्लीकेशन, लाइक हम क्या करें। तो एक जगह ने बोला कि ओके यू हैव सीन द हाउस, यू लाइक द हाउस, नाउ यू हैव टू मेल द एजेंट की सेइंग कि हाँ प्लीज़ लाइक वी लाइक द हाउस एंड सेंड इन योर डिटेल्स कि आपका गारंटर कौन है, आपका इनकम क्या है, थिंग्स लाइक दैट। एंड बीइंग लाइक अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली आवर एप्लीकेशन वॉज नॉट दैट ग्रेट। और हमारे बहुत प्लेसेस गए, लाइक बाय द टाइम वी रीच्ड होम, लाइक हमने कभी कभी लाइक इन द स्टार्टिंग हमको जब इतना पता नहीं था कि हाउ द हाउसिंग मार्केट वर्क्स, हम बोल रहे थे कि ओके विल गो होम, विल थिंक अबाउट इट, विल डिस्कस एंड देन विल कॉल। और एक दिन में लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, वो जाके भी उस दिन ही उसी के बाद गया। सो लाइक व्हेन वी केम टू सी दिस प्लेस, what different we did was, okay fine, we were like okay घर देखा, it is good, like it's a nice place, as you can see like it's a pretty big room. And then what we did was हम बाहर गए, we were like okay like let's just do this. हम immediately वापस आए, हम एजेंट को बोले कि we are giving you an offer right here right now, don't give it to anyone else, this is we want this house बस। तो आप बताओ हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डिपॉजिट, बिकॉज वी हैव स्पोकन टू द एजेंट एज वेल, वी हैव सीन द प्रॉपर्टी, सो वी नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, राइट। सो वी वर लाइक अभी ऑफर दे ही रहे, बिकॉज अदरवाइज वेयर वुड वी गो, राइट। तो एजेंट बोला कि फाइन यू विल हैव टू पे दिस मच अमाउंट इन डिपॉजिट, ये भी करना है। तो इसका में क्या हुआ कि लाइक वेल विलिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, वी हैव अ 1 year कॉन्ट्रैक्ट, सो 1 साल के लिए वी कैन नॉट ब्रेक दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड वी कैन नॉट लीव, लाइक इफ समथिंग बेटर कम्स अप और एनीथिंग एल्स वी हैव टू स्टे हियर। सो दिस वाज लाइक अ बिग कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम आवर साइड, बट घर मिल रहा था तो वी हैड टू डू दीज थिंग्स, लाइक हॉल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है, और लॉट ऑफ डाउन साइड्स। आई विश लाइक आप जब घर ढूंढो और आपका ऐसा सिचुएशन आए, like things would be much easier for you. So ऐसे है कि each and every flat has different kind of requirements, okay? So for example हमने एक और जगह पे ऑफर दिया था, तो उनको गारंटर का इन्फॉर्मेशन चाहिए था। तो गारंटर कौन होता है, अगेन ओके माई फ्रेंड्स डैड्स फ्रेंड decided to become a guarantor. So basically उनका income was more than 55,000 pounds per annum per person, ठीक है। So it is like a huge amount. तो ऐसे नहीं कि अगर आपके पास एक पर्सन एक गारंटर है and who is earning less than 55,000 pounds, you can get 2 or 3 guarantors, even 4, कि थोड़ा सबका थोड़ा थोड़ा इनकम कंबाइन करके if you can show कि हाँ इससे आप ज़्यादा अमाउंट है, then it is sorted. But how hard is that? I mean आपका कोई एकदम क्लोज रिलेटिव हो तो आप उनको बोल सकते हो, but what happened for this flat, हमने उनको भेजा but then they were asking for so many personal details कि हाँ आपका मंथली इनकम क्या है, हम कहाँ इन्वेस्ट करते हो, मतलब like so many details आपके पर्सनल इनकम के बारे में to give to someone. It is like you need a trusted person, you know. So हमारा like it was so hard for us to ask uncle to give all those details. So the best scenario is pay 6 months upfront, but obviously मतलब it is not easy, like 6 महीने का रेंट एक साथ like almost 6-7 lakh to pay upfront, not easy, but that is the other only scenario you have. So find a guarantor, like this is when you don't have a job, okay? So find a guarantor or pay ज़्यादा पैसा upfront, but yeah, like it is what it is. And ऐसे है कि like even whatever the rent is mentioned on the website, तो तभी लिखा है कि for example the rent is 1,000 pounds per month, पर उसके ऊपर you need to consider like if you are a student, so there is a thing called council tax. The council tax is just like a tax you have to pay to the government. So if you are a student आपको apply करना पड़ता है, but you don't have to pay the council tax, you just have to pay the rent, electricity bill, water bill and Wi-Fi. But for others we also have to pay the council tax. So उसको additional income नहीं, additional expenditure होता है. So imagine like then you just add like 300-400 pounds to that. like अगर फॉर एग्जाम्पल हम 4 लोग हैं तो हमारा काउंसिल टैक्स इज डिवाइडेड बिटवीन द 4 of us. अगर हम 2 लोग होते तो काउंसिल टैक्स इज डिवाइडेड बिटवीन द 2 of us, so it becomes even more expensive. So you need to consider all these factors. So like to figure this out only हमको इतना टाइम लगा ना, like even council tax के बारे में if you go to the council tax website there are different bands of house. So आपका exact address डालो, if there's band A it's more expensive, band B like I was so happy at my student accommodation. किसी का कुछ नहीं सोचा था. I was just having like concentrating on my पढ़ाई and having a good time. And यहाँ पे आके all these responsibilities है, then you have to take care कि कोई लॉक प्रॉपर है, पर्दे, मतलब like so many responsibilities in that sense. But this is what adulting is. So I just want you guys to be sure कि you know what you're getting into and things like that. So कैसे होता है ना कि even like a website like Zoopla, वहाँ पे अलग अलग agents रहते हैं who post their opening, ठीक है. तो if like for example let me give you an example. जो लोग बॉम्बे से they can relate. Like for example अगर आपको एक बॉम्बे में घर रेंट पे लेना है तो what do you do? You call a broker. आप बोलते हो कि हाँ भैया मेरे को मेरा बजट है 10,000 रुपये पर मंथ, मेरे को घर बताओ. तो वो लेके जाते हैं, ये देखो बैंड्रा वाला हाउस, ये देखो खार वाला हाउस,
एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड यू से कि अच्छा चलो मेरे को बैंड्रा वाला हाउस अच्छा लगा, यू पे द ब्रोकर 10,000, लाइक 1 मंथ का रेंट या 1 मंथ का रेंट इज उनका फीस. यहाँ पे द ओनर हैज़ टू पे द एजेंट, यू डोंट पे एनीथिंग. ठीक है, तो बिकॉज द ओनर पेज, द ओनर एंड द एजेंट हैव अ अपर हैंड कि ठीक है, अगर किसी ने बोला कि हम आपको ज़्यादा पैसा देंगे लेकिन बॉम्बे चल 10,000 है, मैं आपको 15,000 देता हूँ, आप मेरे को ऑफर दो, देन यू गेट अ चांस. पर यहाँ पे ऐसे नहीं होता. लाइक द एजेंट एंड द ओनर डिसाइड्स कि हाँ उनको आपको रखना है कि नहीं. एंड अ लॉट ऑफ टाइम उनको इंडियन लड़के नहीं चाहिए होते. सो आई हैव सीन लाइक अ लॉट ऑफ माई इंडियन फ्रेंड्स आर स्टिल क्वाइट होमलेस, विच इज़ क्वाइट सैड. But yeah, you just have to try and keep on applying and just try to find a house and just, you know, just say ki haan we can manage, try to find a guarantor and things like that, right? So in terms of like after, so what happened was like when you find a house, ab viewing karke, so do not get a house without a viewing, okay? Because viewing is damn important. Because viewing के बिना like you don't know what you're getting into. Like ऐसे photos में अलग दिखता है, in reality अलग होता है. ऐसे हुआ है हमारे साथ. The area is very important, especially for girls. कि रात में आजू बाजू में चल के देखो कि if the area is safe, do you feel safe? And things like that. Like without that, do not book an accommodation. So then when you see her house and when you see okay ठीक है चलो हमको ये मिल गया, viewing हो गया एजेंट के पास, so we had to pay an initial holding deposit. Holding deposit मतलब क्या कि okay we are like interested in the house. होल्डिंग डिपॉजिट पे करने के बाद दे टेक द प्रॉपर्टी ऑफ द मार्केट. तो जब तक आप आपके रिक्वायरमेंट सेव मतलब सेटिस्फाई नहीं करते, दे होल्ड द प्रॉपर्टी फॉर यू. इफ नहीं तो देन यू लूज योर होल्डिंग डिपॉजिट. अगर उनके साइड से कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, लाइक डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम हुआ, तो दे विल यू नो रिटर्न इट बैक. बट इफ यू फाइंड लाइक अ बेटर प्लेस देन यू लूज योर होल्डिंग डिपॉजिट. देन यू हैव टू पे डिपॉजिट फॉर योर फर्नीचर एंड थिंग्स लाइक दैट. क्या बोलते हैं इसको, सिक्योरिटी डिपॉजिट. सो सिक्योरिटी डिपॉजिट में बाकी सब चीज़ें आती है कि आपने कुछ डैमेज किया तो आई हैड टू पे 2 months रेंट अप फ्रंट. सो कभी कभी 6 होता है, कभी कभी बिकॉज वी हैड अ गारंटर वी हैड टू पे 2 months रेंट अप फ्रंट. एंड आई थिंक उतना ही. एंड देन हमारे रेंट के ऊपर वी हैव टू पे ऑल दीज थिंग्स लाइक विच इज़ काउंसिल टैक्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाईफाई. सो उसका पूरा खर्चा ऐड होता है. सो ऑल्सो दैट यू नीड टू कंसिडर कि जो 4 bedroom हाउसेज है, दिस इज वेरी स्पेसिफिक, लाइक मोर देन 3 bedroom हाउसेज है, they need additional licenses. Like for example उनको fire exit का, like for example there are 4 or 5 people living in the same house, fire exit के rules are very important here. तो उनके additional खर्चे तो बहुत लोग नहीं देते ऐसे घर. So maybe if you're like 2 or 3 people and you have a job and if you know how to approach in the right way, then it is easy. Anyway, I was talking about agents. I completely like मैं बात करते करते forgot about that. But basically agent का कैसे होता है ना कि the best agents here are Dexter's, there is John Payne, there is Foxtons and I think these are the 3 main ones I believe. वैसे लोकल बहुत एजेंट्स है. यू नो व्हाट आई डिड वाज वी वर सो डेस्परेट, तो हमने जस्ट टाइप किया गूगल पे कि एजेंट्स इन टावर ब्रिज, एजेंट्स नियर हॉलबर्न, एजेंट्स नियर, एंड लिटरली एक एक करके, हेलो दिस इज देवयानी, वी आर लुकिंग फॉर अ 4 bedroom हाउस, इज देयर एनीथिंग अवेलेबल राइट नाउ? नो. हाई दिस इज देवयानी, यू लुकिंग फॉर अ 4 bedroom हाउस फॉर शेयरर्स, इज देयर? हमको लिटरली आई मेड मोर देन लाइक 50 calls, nobody was able to help. Like there was like nahi hai, everything is sold out, and it was so stressful, literally so stressful, because जब तक घर नहीं मिलता तब तक you can't apply for a job and all also, no, because like अगर आप यहाँ पे रह रहे हो, आपका जॉब बहुत दूर है, बिकॉज लंडन इज लाइक क्वाइट ह्यूज, नो, तो यू नीड टू लाइक बी लाइक सेटल्ड एक जगह पे. सो दैट वाज आल्सो पेंडिंग एंड थिंग्स लाइक दैट. सो उसमें बहुत टाइम गया. एंड द लास्ट थिंग, द वर्स्ट केस सिनारियोज, अगर आपको घर मिल ही नहीं रहा तो ऐसे होता है कि कोई तो बहुत अच्छा घर हुआ, उन्होंने बोला कि ओके द रेंट इज 1,000 rupees, दैट इज लाइक मे बी लाइक ओके लेट्स जस्ट कंसिडर 200 pounds per week. तो ऐसे लोग होते हैं कि दे आर सो डेस्परेट, दे हैव सो मच मनी कि वो बोलते हैं कि ठीक है वी विल पे यू लाइक 300 pounds per week, हमको घर दे दो. So that is one is like the shown price and one is asking price. तो asking price लोग कुछ भी बोल सकते हैं. So like obviously the agent और वो owner के लिए it is always beneficial to get like a better rent. So बहुत लोग like the best houses ऐसे जाते हैं prime locations की बोलते हैं कि चलो 1,000 rupees 1,000 pounds per month है, but we will pay you 1,500 or even 2,000 pounds, even double the rent. ऐसे घर जा रहे like so guys. So this is the reality. So make sure कि आप स्टूडेंट हो, स्पेशली जस्ट स्टे एट अ स्टूडेंट अकोमोडेशन, लाइक यू विल बी सो थैंकफुल कि आपका बहुत टाइम और बहुत एफर्ट बच रहा हो. यू स्टिल वांट टू स्टे एट अ अकोमोडेशन, तो मेक श्योर कि आपके पास 6 months का रेंट एटलीस्ट हो. In the back end, you have to have a lot of money, थोड़ा सा saved up, so that you can pay up front. And even if you're jobless, like make sure कि 6 months rent. Job मिलने के बाद comparatively easy because you don't have to pay 6 months
रेंट अप फ्रंट, पर तो भी उसमें कॉम्पिटिशन इज रियली हाई. सो स्पेशली ऑल दिस टाइम, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लाइक एवरीबडी, लाइक अगस्त टू आई थिंक अक्टूबर इज़ द मोस्ट प्राइम टाइम जहाँ पे सब लोग ऐसे छोड़ के जा रहे हैं. बहुत लोग इंडिया जा रहे हैं, बहुत लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं. इट्स लाइक crazy, let me tell you, it's crazy, and it is what it is. So yeah, I hope this video was helpful for you guys, and please to subscribe to my YouTube channel. Please help me reach 5,000 subscribers soon. I'll be so happy and so grateful, and have a wonderful day. Take care. Bye.